हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग चैप्टर से रिलेटेड। एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो चैप्टर है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था। जो भी थ्योरी पोर्शन था वो सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर रीड कर लिया था एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीट इन द लास्ट क्लास। सो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ओवरऑल पूरे चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन है अ ट्री which can live up to 4,000 years. Okay, so you get 1 minute of time, then you can answer. ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर है रेडवुड ट्री, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है अपने चैप्टर में। सो आई होप आप लोग सबने सही आंसर लिखा है। तो आप लोगों को अपने सारे आंसर्स लाइव चैट वाले ऑप्शन में लिखना है एंड आप लोग को अपना सारा आंसर्स स्क्रीन से देख करके सही कर लेना है कि यू हैव टू जस्ट वेरीफाई योर सेल्फ वेदर यू हैव रिटन द करेक्ट आंसर और नॉट. Okay, now let's move on to the next question. Next question is the structural unit of a living thing. Okay, again you get 1 minute of time. Right, let us see the answer. Answer will be cell. Cell is the structural unit of a living thing. Okay, I hope आप लोग सब ने अपना आंसर्स लिखा है कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज you have to tell me what are tiny pores present on the underside of a leaf called as. Okay, what are the tiny pores present on the underside of a leaf called as? What is one name that you can give it? So again you get some time to answer. चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में. ओके, सो इसका आंसर होना चाहिए स्टोमेटा. अगर आप प्लूरल बोल रहे हैं, अगर आप सिंगुलर बोल रहे हैं तो इट शुड बी स्टोमा. ओके, नेक्स्ट अंडर दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी a plant that shows phototropism.
ठीक है। स्पेशली आपको अगर एक नाम बोलना हो प्लांट का जो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो आप कौन से प्लांट का नाम लिखेंगे। एंड उस प्लांट के बारे में आपने चैप्टर में भी पढ़ा है दैट देयर इज़ वन सच plant which specifically shows phototropism. It moves its body parts towards the light. Okay, so think about that and try and answer that in the comment section. All right, the answer for this one should be, other answers are also possible definitely, बाकी answers भी possible हैं, but sunflower should be a better answer क्योंकि वो ज़्यादातर अपने फ्लावर को लाइट के तरफ बेंड कर लेता है, सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, इसलिए भी उसका नाम सनफ्लावर पड़ा है. तो यू कैन जस्ट राइट दिस एज योर आंसर. This would be more appropriate rather than writing some other plant's name. Okay, next question under this, name the following. इस question के बाद जो next question हम लोगों को लिखना है, that would be a different question. In this question you will have to write the fill in the blanks. That means we are going to do fill in the blanks in the next question. Fill in the blanks. Under this you have question 1. Human beings till the age of 18 years. You have to fill this blank. Okay, start writing your answers in the comments. You have some time to answer. Think what you should write there. Okay, so I hope अभी तक आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. That what should be filled up in the blank, you could write here, human beings grow till the age of 18 years, or you can write grow in size till the age of 18 years, or grow in height till the age of 18 years. But अगर एक word में लिखना हो तो आप simply grow लिखेंगे. Okay, next question under this fill in the blanks is leaves of mimosa plant shows dash. Okay, leaves of mimosa plant shows dash towards touching. Okay, leaves of mimosa plant shows dash towards touching. Okay, you get some time to answer. Think about which word you should write in the blank in order to complete the sentence and make it meaningful. Okay, चलिए बताइए जल्दी जल्दी आप लोगों को क्या आंसर लिखना चाहिए उसमें. What word will you fill up in the blank? Think about that and then tell me. All right, so leaves of mimosa plant shows response. Response could be one word that you can write. Okay, leaves of mimosa plant shows response towards touching. Touching is a stimulus in this case and response is drooping. Droop हो जाता है, अपने आप को सिकोड़ लेता है leaves. So that is the kind of response that it shows towards touching, right? Okay, next question. A house fly lives for about
dash months. You have to fill up the blank कि कितने महीने तक हाउस फ्लाई ज़िंदा रह सकता है. You have to fill it up with its लाइफ स्पैन, कि हाउस फ्लाई का लाइफ स्पैन एक्चुअली कितना होता है, कितने महीने तक वो सर्वाइव कर पाता है. So you have to fill up with that. Think about the answer and write down in the comment section. Okay. चलिए, come on, start answering. All right, so here the answer should be housefly lives for about 1 to 4 months, है ना. 1 से 4 महीने तक ज़िंदा रह सकता है हाउस फ्लाई. So if you have written this answer 1 to 4 months, then your answer is absolutely correct. Okay. Next question under this, dash is the borderline between living and non-living things. Living and non-living things. Okay, you have to tell me what will you fill up in the blank, that ऐसा क्या है जो living and non-living things के बीच का border line होता है. You have to think about what that substance is, what that organism is. You have to think about that and write that in the blank. So write your answer in the comments and think आपको क्या लिखना चाहिए वहाँ पर. Okay. All right, the answer here should be virus. Virus is the borderline between living and non-living things, because what should be the reason behind it कि वो borderline क्यों कहलाता है. वो इसीलिए क्योंकि वायरस जब लिविंग सेल के बाहर होता है, it is acting like a non-living thing. It is very inactive. It does not show any kind of life in it. It just acts like a non-living thing. But when it enters a living cell, जब वो किसी living cell के अंदर enter करता है, it starts activating itself, it starts showing growth, it starts growing in size and shape and volume, and at the same time it starts reproducing and increasing its number. So viruses become active, viruses start behaving like a living thing only inside a living cell. But when it is outside a living cell, when it has not entered a living cell, then it is acting like a non-living thing. Okay. Chaliye. Next is, these are not fill in the blanks now. Fill in the blanks is now over. We are now going to discuss normal questions that you will be answering. Okay. Answer the following. Question 1, under that, define tissue. Okay, write down your answer in the comments. I'm looking forward to your answers. What answers you have written, let me see. What do you understand by a tissue? What should be a tissue? Okay, so I'm giving you some time to answer. Write your answers in the comments. What do you think a tissue should be and how are you going to define that? Write that in the comments. Okay. चलिए, बी वेरी क्विक इन आंसरिंग. बताइए क्या आंसर होना चाहिए. चलिए अभी डिस्कस करते हैं टिश्यू का डेफिनेशन. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर function performing cells
form a tissue. Okay, so a tissue is a group of similar function performing cells, right? Okay, next question under this is name two animals which cannot show locomotion. Okay, so you have to name two animals which cannot show locomotion. ऐसे दो animals का नाम बताना है जो locomotion show नहीं कर सकते हैं. Normally generalized जो opinion होता है इस केस में कि क्या animals एक जगह से दूसरी जगह move कर सकते हैं, तो definitely they can move from one place to another place. That means they definitely can show locomotion. बट ऐसे दो animals का नाम आपको बताना है जो locomotion show नहीं कर सकते हैं, जो अपने पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं. जैसे कि प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं, बट येस दे कैन शो मूवमेंट. सिमिलर वे में ऐसे दो एनिमल्स कौन से हैं जो लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं. ओके, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस बिफोर इन द क्लास. आई होप यू रिमेंबर. को पहले से याद होगा कि क्या लिखना है. एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट देन प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, when the answers are discussed you can just check and verify your answer कि आपने सही लिखा है या नहीं. Okay, all right, now let us discuss the answer. The answer here should be first answer, first name of animal, it should be hydra, and the next answer that is you have to answer two names. दो animal का नाम बताना है. तो पहला आपने hydra अगर लिखा है तो सही है, और दूसरा अगर आपको बताना है तो दैट शुड बी सी एनिमन. ओके, सी एनिमन शुड बी द आंसर एंड हाइड्रा शुड बी द आंसर. सो दीज टू नेम्स ऑफ एनिमल्स आर करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the gas inhaled by human beings during breathing. Also write its importance in respiration. ओके, यहाँ पे इट्स का मतलब से हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किसका आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है इम्पोर्टेंस. इट्स इम्पोर्टेंस मतलब गैस के बारे में पूछ रहे हैं ना, गैस के इम्पोर्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं. रेस्पिरेशन में इस गैस का क्या इम्पोर्टेंस होगा. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं. पहला तो ये कि ऐसा कौन सा गैस है जो ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग के थ्रू कौन सा गैस ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है. ओके, सो विच गैस इज एंटरिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये पहला चीज़ आपसे पूछा गया है. और उसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन डाला गया है साथ में, दैट ऑल्सो राइट इट्स इम्पॉर्टेंस इन रेस्पिरेशन. मतलब आपको बताना है कि ऑक्सीजन गैस का इम्पॉर्टेंस हमारे बॉडी में कितना है, ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट है और उसका क्या रोल होता है रेस्पिरेशन में, ये भी लिखना है. ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर एंड आई होप आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर टू यू कि आपको लिखना क्या है आंसर में. So if you have understood that already then start writing your answers in the comments. जल्दी से फटाफट मुझे आंसर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन 3 के लिए. ओके, जल्दी से बताइए.
राइट तो इसका जो आंसर है वो होगा, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजन गैस, दैट ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि इस ऑक्सीजन गैस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो आप ये लिखेंगे कि ऑक्सीजन गैस फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करता है, जो सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन गैस इनहेल नहीं किया जाएगा तो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो नहीं होगा, और कोई एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होगी, फूड पार्टिकल्स का रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन गैस के साथ। इसीलिए जो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है उसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम कमज़ोर महसूस करेंगे, वीकनेस आ जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होंगी? क्योंकि ऑक्सीजन गैस हम इनहेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या इनहेल नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस किसी भी तरीके से बॉडी में नहीं पहुंचेगा तब। तो ये इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन गैस का। सो हमें यहाँ एक्चुअली लिखना क्या पड़ेगा, दैट ऑक्सीजन गैस reacts with food particles to release energy during respiration. This released energy is used for doing various life processes. Okay, so this is what you can write as your answer कि ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है फूड पार्टिकल्स के साथ और तभी एनर्जी रिलीज़ हो पाती है, बिना ऑक्सीजन गैस के एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पर आंसर करना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड देन यू कैन आंसर इट। Write the respiratory organ or body part write the respiratory organ or body part which help the following organisms in breathing। ठीक है, सो अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम हम लिखेंगे, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन या कौन सा बॉडी पार्ट मदद करता है, ये आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन बीइंग, second is fish, third is dolphin, fourth is earthworm, fifth is cockroach, and sixth is frog. Okay, frog in water and
frog on land. Okay, so these are some of the questions. इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताना है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स सांस लेने के लिए कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं या कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो यू गेट सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. थिंक कि आपको क्या आंसर लिखना चाहिए सबके बारे में. तो यहाँ पर आपको टोटल 7 हैं क्वेश्चंस मिले हुए, एंड 7 क्वेश्चंस में आप किसके लिए क्या लिखेंगे सोचिए और बताइए. पूरे चैप्टर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन टॉपिक में इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ पर आप लोगों ने भी कमेंट में लिखा था, मैंने भी क्लास के दौरान बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए या गैस एक्सचेंज के लिए. सो आई होप आपको वो चीज़ याद होगी, एंड यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट्स. सो बी क्विक एंड राइट द आंसर्स so that we can verify it quickly. Okay, human being, fish, dolphin, earthworm, cockroach, frog in water, frog on land. ठीक है, 7 है. बताइए आंसर. ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं. मैंने काफ़ी टाइम दे दिया आपको आंसर करने के लिए, अब तक आपने आंसर कर लिया होगा. सो ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स थ्रू लंग्स. लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, राइट. अगर आपने लंग्स लिखा है तो इट इज़ करेक्ट आंसर. फिश, इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, गैस एक्सचेंज अकर्स एट गिल्स, राइट. डॉल्फिन के लिए आप 2 आंसर्स लिख सकते हैं. यू कैन राइट द गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू ब्लो होल. इफ़ यू हैव रिटन दिस देन ऑल्सो इट कुड बी कंसिडर्ड करेक्ट. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हम नोज़ भी लिखेंगे तो चलेगा, एंड लंग्स भी लिख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि नोज़ वो एक एंट्रेंस एरिया है जहाँ से गैस बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, एंड लंग्स में एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है. दोनों लिखेंगे तो इट कुड बी एक्सेप्टेबल. उसी तरीके से डॉल्फिन के केस में ब्लो होल एक नोज़ की तरह काम करता है. जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारा नोज़ वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से एयर अंदर जा रहा है या एयर बाहर आ रहा है, राइट. एंड लंग्स में एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है. उसी तरीके से डॉल्फिन में भी है कि डॉल्फिन में अगर आप ब्लो होल लिखते हैं तो दैट मीन्स यू आर जस्ट राइटिंग नोज़ फॉर द डॉल्फिन, कि डॉल्फिन के पास नाक नहीं होती है सांस लेने के लिए, लेकिन उनके पास ब्लो होल होता है जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है. But it also contains, apart from this you can also write lungs, because dolphin is a kind of mammal, so it contains lungs to breathe. Okay, you can write that also. Earthworm के लिए आप लिख सकते हैं moist skin, it breathes through the moist skin, right. And cockroaches के लिए आप लिखेंगे spiracles. spiracles के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने पहले भी. एंड फ्रॉग इन वाटर, फ्रॉग इन वाटर पानी के अंदर अगर फ्रॉग है तो इट इज़ अगेन गोइंग टू ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन, राइट. एंड फ्रॉग ऑन लैंड, लैंड मतलब ज़मीन के ऊपर अगर फ्रॉग को सांस लेना है तो इट इज़ गोइंग टू यूज़ इट्स ओन लंग्स, बिकॉज इट इज़ एम्फीबियन, इट कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो एंड एज वेल एज ऑन वाटर ऑल्सो. ऑल राइट, सो आई होप द आंसर्स आर क्लियर. एंड अब मैंने जैसे आंसर लिख दिया है, आप अपने कमेंट सेक्शन में आपने जो आंसर लिखा था उसके साथ आप उसको टैली करके देखिए, वेरीफाई करिए वेदर यू हैव रिटन दिस करेक्टली और नॉट. ओके, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज okay. Fill with correct word. Okay, fill with correct word. So I am going to write one thing and you have to fill
अ गैप, एक गैप रहेगा, उसको आपको करेक्टली फिलअप करना है। ओके, सो आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, आप कोशिश करिए इसका जवाब देने का। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, टेक बर्थ, देन देर इज़ अ गैप हियर, वो यहाँ फिलअप करना होगा कि फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या फिलअप करेंगे। देन रिप्रोड्यूस, ग्रो ओल्ड इज द नेक्स्ट, इज द सेकेंड लास्ट स्टेप। एंड देन एक और ब्लैंक आपको दिख रहा है कि ग्रो ओल्ड के बाद फिर आपको फाइनली क्या लिखना है। So take birth, then a gap, then reproduce, then grow old, and then a gap. Okay? So birth के बाद कौन सा स्टेप आता है, उस स्टेप के बाद reproduce का स्टेप आएगा, then growing old का स्टेप आएगा, और फिर फाइनली कौन सा स्टेप या कौन सा स्टेज लास्ट होता है। So second stage and the last stage of a lifespan is asked, and you have to write that in your answer in the comment section. तो कोशिश करिए जल्दी जल्दी इसका आंसर करने का कि what should be the second stage and what should be the last stage। ये आपका second stage है जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, and this is the last stage that is being asked। ठीक है, तो बताइए सोच के कि आपको क्या जवाब देना होगा। ओके, कि सेकेंड स्टेज में हम क्या लिखेंगे एंड लास्ट स्टेज में हम क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, नाउ लेट अस आंसर। इसका आंसर क्या होगा, पहला तो इसमें okay, the second stage should be after taking birth we start growing, so growth is the next step, so you can write grow, that would be the second stage। and the last stage कि last में क्या होता है, growing old के बाद क्या होता है, the organism dies, so death is the last stage। okay, second stage is growth and the last stage is death। okay, so that's how you fill up the blank। next अगर आपसे question पूछें, next question है all right, the next question is plants cannot show dash but can show dash। प्लांट्स क्या शो नहीं कर सकते हैं बट क्या शो कर पाते हैं। ठीक है, सो दो ब्लैंक है, आपको दोनों ब्लैंक सोच करके भरना है, फिल करना है कि क्या करेक्टली आप उसमें भर पाएंगे कि वो मीनिंगफुल होगा। सो प्लांट क्या शो कर सकता है और क्या शो नहीं कर सकता है। प्लांट्स कैन शो डैश बट कैन नॉट शो डैश। ठीक है, सो थिंक अबाउट दैट एंड देन आंसर कि उस प्लांट्स ऐसा क्या है जो वो शो नहीं कर सकते हैं और ऐसा क्या है जो वो शो कर पाते हैं। ठीक है, think about that and start answering in the comment section। all right, let us discuss the answer।
आई होप अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में. सो प्लांट्स कैन नॉट शो लोकोमोशन but can show movement. Okay, so these two words make the sentence meaningful. If you think इससे अलग हट के कुछ आंसर होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शनली आप कुछ अलग सोचकर इसके बारे में आप लिखना चाहेंगे ब्लैंक में कि कुछ और भी वर्ड्स अगर ये फिलअप हो सकता है, तो देन यू कैन डेफिनेटली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू रीड द कमेंट्स एंड टेल यू वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो अगर आप कुछ और आंसर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरा आंसर भी मुझे लिख कर बता सकते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू सी इन द कमेंट सेक्शन देयर. ओके, सो गुड, राइट, वी हैव completed with the chapter, with the questions. As you can see, we have discussed many questions today. I hope you liked today's class, and in the next class let's see what things we can plan for the next classes, because this chapter was already belonging to your second term portion. So I'm going to discuss with other teachers whether they are going to move forward with the second term syllabus, whether they are going to start with the second chapter of the second term or not. If not, then we can start with the first term revision. ठीक है, तो जैसा होगा I'm going to inform you, and accordingly we can continue with the class. Okay, ठीक है. So thank you everyone for attending today's class. We will meet tomorrow at the same time, and I'll let you know whether we'll start with this first term revision or we'll continue with the second term portion, because ये एक chapter था second term का, we already completed that. So let's see what can be done.